Hello students, today we will read about the chapter 15, that is light. So let's start. First of all, we should know that what is light. So student, you know that light is a source of energy, or we can say that light is an energy. And in this lesson, as you know that we read about the light. So rail engine is also uses light for running, and beams of light you can see in this picture. This is the beams of light. This one is the beams of light. And first of all, in this chapter we will read about the light travels along a straight line. So in figure you can this figure you can see this is a candle and a person, a boy, who are seeing this by a tube, or we can say that by a rod to the light. Okay, so first of all, and in also in second figure, this rod, we can say that this is a twisted rod, okay, not a straight. So why these two pictures are different, we will read about it. Okay, so light travels along a straight line. Okay, let's start to read it. Students, you know that the activity showed that light travels along a straight lines. Okay, so Bujo recalls an activity he performed in class 6th. In that activity, he looked at a lighted candle first through a straight pipe and then through a bent pipe. Why was Bujo not able to see the candle flame through a bent pipe? So this is the two types of pipe. First one is straight pipe, and second one is, this one is your straight pipe, and second one, this one is your bent pipe. So why light is not clear in your bent pipe, through your bent pipe it is not clear? Why? So you know that the activity showed that light travels along a straight line. That's why the bent pipe cannot show the light, because light travels along a straight lines. How can we change the path of light? Do you know what happens when light falls on a polished or a shiny surface? So students, for this we have to read about reflection of light. Reflection of light. First of all, you should know the diagram. This is the reflection of light. Reflection of line in water, you can see, and this one is reflection of light from a mirror. So let's start to know reflection of light. So student, you know that one way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface. For example, a shining stainless steel plate or shining steel spoon can change the direction of light. The surface of water can also act like a mirror, change the path of light. Have you ever seen the reflection of trees or building in water? So स्टूडेंट, इसमें बोला जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी शाइनी सरफेस लाइट के रिफ्लेक्शन को चेंज करता है, जैसे कि रिफ्लेक्ट डायरेक्शन को चेंज करता है. जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं, कोई भी आपके यहाँ स्टेनलेस स्टील की प्लेट हो, उस पर आप देखिए अगर लाइट फॉल होती है या शाइनिंग कोई स्टील स्पून है, तो डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं उसका लाइट का. कैसे चेंज करेंगे, अभी हम आगे एक्टिविटी में पढ़ेंगे. जो सरफेस, अगर आप कभी भी वाटर के सरफेस को देखो तो वो भी कैसे एक्ट करता है, एक मिरर की तरह एक्ट करता है, और लाइट के पाथ को क्या करता है, वो चेंज करता है. तो एनी पॉलिश्ड ऑफ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई भी पॉलिश सरफेस या शाइनी सरफेस हो तो वो किस तरह एक्ट करेगी, एज अ मिरर एक्ट करेगी. व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द मिरर? क्या होता है जब लाइट्स इन शाइनी सरफेस पे पड़ती है? तो यू हैव लर्नड इन क्लास 6 दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जब भी मिरर जो होते हैं वो लाइट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं जब भी लाइट्स उन पर फॉल करती है. दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसी चेंज को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट.
इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब हम कैसे, अगर मान लो हम बात करते हैं कि वी हैव अ मिरर, ओके, दिस इज द शाइनी सरफेस। सो लाइट आपकी सॉरी, इधर से हम ऐसे देखते हैं, एक्टिविटी 15.2 को देखते हैं या 1 को देखते हैं, हम पढ़ के तब क्लियर करते हैं इसको। सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 15.1। टेक अ टॉर्च, कवर इट्स ग्लास विद द चार्ट पेपर। आपको एक टॉर्च लेना है, उसको चार्ट पेपर से कवर करना है, जिसमें 3 स्लिट्स हों, 3 गड्ढे टाइप का स्ट्रक्चर हो, 3 स्लिट्स हो, होल हो हम कह सकते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड, उस पर लगाना है। फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन अ चार्ट पेपर पे वर्टिकली हमको एक मिरर को की स्ट्रिप को रखना है। और उसके बाद नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विद slits. Place the torch in such a way that the light is seen along the chart paper on the board. Now adjust the position so that a light from the torch strike the plane mirror at an angle. As you seen in figure 15.5, this is your slits. ये आपकी स्लिट्स हैं और इससे ये लाइट्स आपकी, जस्ट अ मिनट, ये लाइट आपकी फॉलो कर रही है इस प्लेन मिरर पे, ये 3 लाइट्स हैं। और इसके बाद ये लाइट्स पढ़ने के बाद इधर से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इधर से देखिए ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ रही हैं, तो दिस इज़ योर रिफ्लेक्शन, ओके। नाउ डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट? नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू आइदर साइड। आप टॉर्च को दूसरी तरफ घुमाइए। डू यू फाइंड एनी चेंज डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट? नो। Look into the mirror along the direction of the reflected light. Do you see the silts in the mirror? This is the image of the silts. ये जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये silts की इमेज हैं, जो यहाँ से 3 रेस यहाँ आ रही हैं और ये ग्लास पे पड़ रही हैं आपके मिरर पे। ये वही स्लिट्स हैं जो आपने अभी बनाया था। So students, पहली wants to know what makes things visible to us. बूझो थिंग्स दैट ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेज योर आइज। कहते हैं कौन सी चीज़, मतलब बूझो कहता है, बूझो कहते हैं कि बूझो थिंग्स दैट ऑब्जेक्ट आर विजिबल, वो ऑब्जेक्ट विजिबल होते हैं केवल व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेज आवर आइज़। वो लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ती है, हमारी आइज़ पे पड़ती है, तो हमको चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। दिस एक्टिविटी शोज हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। ये एक्टिविटी से आपको पता चलता है कि कैसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है प्लेन मिरर से। लेट्स प्ले अराउंड विद द इमेजेस फॉर्म्ड इन मिरर एंड नो अ लिटिल मोर अबाउट देम। स्टूडेंट, दिस इज योर कॉशन दैट हैंडल द लाइट कैंडल विद केयर। यू हैव टू हैंडल इट वेरी care, and it is better if this activity is performed in the presence of a teacher or an elder person. So students, in the presence of your elder, you have to perform this activity. Now place, this is next activity. Place a lighted candle in the front of a mirror. So this is your mirror and this is your lighted candle. Try to see द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। अब इसको आप ट्राई करिए कि इस कैंडल को आप इस प्लेन मिरर में देख सकें। इट अपीयर्स इफ़ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। ये जैसा ये कैंडल है ऐसा ही आपको ये भी दिखाई पड़ेगा। द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज़ द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म बाय द मिरर। ये वो इमेज है जो मिरर पे बन रही है। द कैंडल इटसेल्फ इज़ द ऑब्जेक्ट। और जो ये कैंडल है इसको हम क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट है और इसकी मिरर इसकी इमेज इस मिरर पे पड़ रही है। ठीक है, ओके। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। और इसको आपको मूव करना है और हर एक केस में आपको ऑब्जर्व करना है कि कितने इमेजेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं। वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस? डिड द फ्लेम appear on top of the candle as in the object? Such an image is called erect image. So this image which are formed is called as erect image.
एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट ये कह रहे हैं जो भी इमेज प्लेन मिरर पे बनेगी वो हमेशा इरेक्ट पोजीशन में होगी और सेम साइज़ की होगी जैसा कि आपका ऑब्जेक्ट है, उसी ऑब्जेक्ट की तरह ये बनेगा और ये इरेक्ट पोजीशन में फॉर्म होगा। ओके, नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन। अब आपको वर्टिकल स्क्रीन पे इस इमेज को फाइंड आउट करना है। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? नाउ प्लेस द स्क्रीन फ्रंट ऑफ अ मिरर। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? नाउ you will find that the image of the candle can't be obtained on the screen in either case. So you know that the candle can't be obtained on the screen in either cases or case. What about the distance of the image from mirror? Let us perform another activity. इमेज से आपकी जो बन रही है क्या डिस्टेंस होनी चाहिए उसकी मिरर से? सो स्टूडेंट, activity 15.3, this is your activity 15.3. Take a chessboard. If chessboard is not available, draw on a chart paper 64 8 into 8 squares of equal size. Draw a thick line in the middle of the paper like this. Fix a plane mirror vertically on this line. This is your mirror, plane mirror vertically you have to fix it. Place any small object such as a pencil sharpener at the boundary of the third square containing from the mirror as you seen in picture. Note the position of the image. Now shift the object to the boundary of the fourth square. Again note the position of the image. Did you find any relation between the distance of the image from the mirror? Yes. आप अपने घर में एक्टिविटी करिए, इसको जितना करीब लेके आएंगे उतनी इमेज आपको फॉर्म इस मिरर पे दिखाई पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आप दूर लेके जाएंगे इमेजेस आपकी कम फॉर्म होंगी या कह लीजिए कम बनेंगी। ओके, सो you will find that the image is at the same distance behind the mirror as the object in front of it. Now verify this by placing the object anywhere on the chart paper. So ये यहाँ से क्लियर हो, जितनी नज़दीक आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतना ज़्यादा फॉर्म होगा इमेज और जितना दूर ले जाएंगे उतना इमेज कम बन रही है। राइट और लेफ्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। राइट, दिस इज द अनदर कॉन्सेप्ट, राइट और लेफ्ट। सो स्टूडेंट, व्हेन यू सी योर इमेज इन प्लेन मिरर इट इज़ एग्जैक्टली लाइक यू। जब भी आप प्लेन मिरर पे देखते हो तो आपको आप जैसे ही ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। हैव यू सी एवर नोटिस दैट देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन अ मिरर? लेट अस फाइंड आउट। एक डिफरेंस दिखाई पड़ता है जिसको हमको अभी फाइंड करना है। जैसे इस इमेज में देखिए आपको एज सच आप दिखाई पड़ रहे हो उसमें, जैसे आप इसमें आप बाहर से आप हैं वैसे ही आपको प्लेन मिरर पे दिखाई पड़। तो कैसे हमको जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट टू रीड एक्टिविटी 15.4। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। आप खड़े हो ना, आपको उसमें देखना है, अपने हैंड को रेज करना है। विच हैंड डज योर इमेज रेज? आप देखिए कि कौन सा हैंड को आप रेज कर रहे हो। नाउ टच योर राइट ईयर, अपने राइट ईयर को टच करिए। विच ईयर डज योर हैंड टच इन योर इमेज? लेकिन साथ साथ आप इमेज में देखिए कि मैं तो राइट टच कर रहा हूँ लेकिन इमेज में तो लेफ्ट टच दिखाई पड़ा कि जैसे कोई लेफ्ट वाला कर रहा हो। ऑब्जर्व इट केयरफुली, यू विल फाइंड दैट इन द मिरर ऑफ द राइट अपीयर्स लेफ्ट। मीन्स दैट अगर राइट में पॉकेट हमारे लेफ्ट में है तो पॉकेट हमारा किधर दिखाई पड़ेगा? लेफ्ट साइड में दिखाई पड़ेगा। द लेफ्ट अपीयर राइट, और राइट में रखी हुई चीज़ लेफ्ट में अपीयर होगी। नोट दैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज्ड, द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन साइड। केवल साइड्स चेंज हो रही हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी बॉडी आप नहीं चेंज हो रही, केवल साइड्स चेंज हो रही। नोट दैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज, द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड और डाउन साइड। आपकी इमेज अपसाइड और डाउन साइड नहीं हो रही, केवल साइड चेंज हो रहा है यहाँ पे। नोट, नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। हाउ डज इट अपीयर्स इन अ मिरर? आपने एक्टिविटी करके देखा होगा कैसे दिखाई पड़ता है। ठीक है, ओके, पता करिएगा कैसे दिखाई पड़ता है। बूजो सा एन एम्बुलेंस ऑन द रोड, ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट वर्ड एम्बुलेंस इन फ्रंट वॉज रिटेन इन अ स्ट्रेंज मैनर। एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, तो ये क्यों? ठीक है,
क्यों ऐसा होता है, यू हैव टू फाइंड आउट। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटेन एज इन फिगर 15.9 व्हेन द ड्राइवर इज ऑफ ए व्हीकल अहेड ऑफ एन एम्बुलेंस लुक्स in her or his rear view mirror, she or he can read ambulance written on it and give way to it. It is the duty of everyone to us to allow an ambulance to pass without blocking its way. सभी की ड्यूटी है कि बिना ब्लॉकिंग किए हुए उस एम्बुलेंस को जाने देना है पहले, क्योंकि उसमें कोई पेशेंट हो सकता है और उसके लिए जो है ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं उसकी लाइफ को सेव करने के लिए। तो व्हाट हैपन, तो यो वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्बुलेंस विच आर रिटन स्ट्रेंज मैनर। तो ये क्यों लिखा हुआ होता है स्ट्रेंज मैनर में, क्योंकि सामने वाले को वो सीधा दिखाई पड़े, ठीक है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट इन द साइड ऑफ मिरर ऑफ ए स्कूटर और अ कार द इमेज ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट अपीयर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट देमसेल्फ। हैव यू एवर वंडर वाई इट इज़ सो? So students, this case we will study in the next class, why it is appears smaller than the object themselves, which type of lenses are used. Okay, so we will read this in playing with spherical mirror in next lecture. Thank you.